Assalamu alaikum dear students, welcome in second year computer science class. We are discussing on chapter number 6 input and output statements, and today's our topic is input output functions in C language programs. And in previous lectures we were discussing about formatted input output functions. Now in this topic class we are going to discuss unformatted input output function. So in previous class we were discussing a complete structure of input output functions in C language, and in previous as I told you that we were discussing formatted functions, and also we discussed about unformatted functions. Same chart you can see on your screen. There are types of variable, as I told you, that character, integer, float, string, and input type was get.ch, get.che, get.cher, and gets, and output we use for example type of variable is character, and as a input we use function of get.ch, get.che, and get.cher. For output we use put.ch and put.cher. It is same like in formatted input output functions we were discussing for printf and for scanf. Same function we also use in different ways in C language program as a get.ch and get.che and get.cher and put.cher. These are the basic input output functions. So students, let's see get.cher. Get.cher function reads a character from the terminal and returns it as an integer. जब हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है. तो जब हम get.cher फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो करैक्टर को रीड करता है किससे, टर्मिनल से, और उसके अगेंस्ट आपको एज ए इंटीजर रिटर्न किया जाता है. दिस फंक्शन रीड्स ओनली सिंगल करैक्टर एट अ टाइम. You can use this method in loop in case you want to read more than one character. For example, हम क्या करते हैं, for loop यूज़ करते हैं. For loop में हम for example 1 से 10 तक की काउंटिंग को काउंट कराना चाह रहे हैं जो कि हमारे डिस्प्ले पे आएगा. अब वो क्या करेगा, वन करेक्टर को रीड करेगा, उसको कंपेयर करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, लेस देन रहेगा 10 से, देन उसमें ऐड करेगा, सिंगल करेक्टर 1 बाय 1 उसमें एडिशन होती जाएगी और उसको रीड करता जाएगा और देन उसका आउटपुट आता जाएगा. सिमिलर पुट करेक्टर, द पुट करेक्टर फंक्शन डिस्प्लेज द करेक्टर पास्ड टू it on the screen and returns the same character. जैसे हमने कहा था scanf से आप क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसी इनपुट को वो क्या कर सकता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है. दिस फंक्शन to displays only a single character at a time. In case you want to display more than one character, use put.cher method in a loop. अगर आप more than one character यूज़ करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप put.cher जो मेथड है वो आप लूप में यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे हम लूप में, फॉर लूप में या कुछ वाइल डू वाइल आगे चल के आएगा, उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं और scanf के थ्रू और आउटपुट देते हैं printf के थ्रू. तो जो भी आप करैक्टर टाइप करेंगे या इनपुट लेंगे एज इट इज़ वहाँ पे वो डिस्प्ले में आ जाएगा. तो सिंगल करैक्टर के लिए तो put.cher सही है, और अगर मोर देन वन करैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं तो फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं put.cher को. तो ये हमारे पास एक मेथडोलॉजी चल रही है. Similar we have an example include stdio.h void main void, same function integer c. हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने नाम रखा इंटीजर c, और प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया इंटर अ करैक्टर.
एक करेक्टर हम कहते हैं कि जी वो प्रिंट हो। कैसे? इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था वी वर यूजिंग scanf फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। सेम c इक्वल्स टू गेट chr। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, डिस्प्लेज द करेक्टर स्टोर्ड इन अ वेरिएबल c। तो वो वेरिएबल c में जो होगा करेक्टर होगा वो स्टोर जो होगा वो डिस्प्ले होगा, देन पुट chr इसको c को, तो आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले पे ले आएंगे जो c की वैल्यू होगी। सिमिलर gets function reads a line from std in stdio.h। मैंने आपको बताया था कि आप मोस्टली प्रोग्राम्स में यूज़ करते रहें क्योंकि इनपुट और आउटपुट जो है आप उसी का चलता रहेगा। std input into the buffer pointed by the str pointer जो कि string pointer कहलाता है, enter the either of terminating new line और end of file जो कि आपका एंड ऑफ फाइल करना हो जाए। तो गेट्स का फंक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन द पुट्स फंक्शन राइट्स द स्ट्रिंग str एंड ट्रेलिंग न्यू लाइन टू std आउट। तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो जब इनपुट से आउटपुट की तरफ जाती है, इसको हम मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ये फंक्शंस भी यूज़ करने आने चाहिए। इसकी डिटेल आपको बुक में बहुत अच्छे मिल जाएगी। Then we have an example include stdio.h void main void similar। then character हम ले रहे हैं string, वेरिएबल हमारा character है, उसमें हमने कहा जी देखा था किस टाइप की हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और किस मेथड में कर सकते हैं। अब हमने एक character वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा है str और उसकी लेंथ रख दी 100। प्रिंट इंटर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है वैल्यू एंटर की जाए। गेट्स डेफिनेटली उसका आएगा जो वैल्यू इंटर होगी और आउटपुट str को प्रिंट कर देगा और गेट ch उससे एग्जिट होने के लिए। तो सेम वही चीज़ें हैं जो कि हम printf और scanf के लिए यूज़ कर रहे थे। Then we have assignment define functions of getch and getch with an example। You have to define functions of getch and getch with an example। all detail is in your book and you can go through it। then students if you have question you can contact me on definitely on group, but you can also subscribe my YouTube channel and you can also join me on my Facebook page, like, share and comment, and if you have queries I am there, I will give you the answers।